آداب، یہ ہے اعتماد کی خبریں۔ سب سے پہلے پیش سرخیاں۔ متنازع وقف ترمیمی ایکٹ بل پارلیمنٹ میں پیش، اپوزیشن کا شدید احتجاج و اعتراض۔ بی جے پی مسلمانوں کی دشمن، متنازع بل پر صدر مجلس بیرسٹر اسدالدین اویسی کا شدید رد عمل۔ فائنینشیل سروسز میں دنیا بھر میں مشہور کمپنی کا مرکز حیدرآباد میں ہوگا قائم۔ چیف منسٹر تلنگانہ ریونت ریڈی کی امریکہ میں کمپنی کے نمائندوں سے بات چیت۔ اور تلنگانہ میں 5 IPS عہدیداروں کو ڈائریکٹر جنرل کے طور پر ترقی، کمشنر پولیس حیدرآباد سرینواس ریڈی بھی شامل۔ بی جے پی زیر قیادت NDA حکومت نے وقف ایکٹ 1995 میں ترمیم کے لیے جمعرات کو لوک سبھا میں وقف ترمیمی بل 2024 پیش کیا۔ اقلیتی امور کے وزیر کرن رجیجو نے اس بل کو لوک سبھا میں پیش کیا۔ اپوزیشن کی جانب سے بل کی مخالفت کے بعد ایوان میں افراتفری کے مناظر دیکھنے میں آئے۔ اپوزیشن جماعتوں کا الزام ہے کہ ترمیمی بل کو پیش کرنے کے مقصد مسلم کمیونٹی کو ان کی زمین، اثاثوں اور مذہبی امور کے انتظام کی آزادی سے محروم کرنا ہے، جس کی ضمانت ہندوستانی آئین کے آرٹیکل 26 کے تحت دی گئی ہے۔ قبل ازیں اپوزیشن جماعتوں نے ٹریزری بنچ سے کہا کہ وہ متنازع بل کو منظوری کے لیے زیر غور لانے سے قبل مزید مشاورت کے لیے پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو روانہ کرے۔ Your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. Venugopal. میں سبھی مانیہ سدسیوں کو جنہوں نے نوٹس دیا ہے ان کو سب کو ایک ایک 2 منٹ بولنے کی اجازت دے رہا ہوں۔ ہلہ کیوں کر رہے ہیں بھائی؟ ہاں تو بولیں گے تو 2 منٹ جو وشے ہے رول 72 کے تحت ہی بولو گے نا آپ، نیم قانون کے تحت ہی بولو گے نا۔ ہاں بولیے۔ مرکزی وزیر اقلیتی امور کرن رجیجو نے جمعرات کو لوک سبھا میں وقف بورڈ ترمیمی بل ایوان میں پیش کرنے کے بعد خطاب کرتے ہوئے اپوزیشن پر اس بل پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا الزام لگایا۔ مرکزی وزیر نے کہا کہ کل رات بھی مسلمانوں کے مختلف گروپس نے اس بل کے بارے میں ان سے رابطہ قائم کیا تھا اور کچھ ارکان پارلیمنٹ نے شکایت کی تھی کہ وقف بورڈ پر مافیا کا راج ہے۔ انہوں نے کہا کہ وقف ترمیمی بل کو بعض ارکان پارلیمنٹ نے اپنی شخصی تائید بھی دی ہے، لیکن سیاسی وجوہات کی بنا پر وہ کھل کر اس کو نہیں کہہ پا رہے ہیں۔ کرن رجیجو نے مزید کہا کہ بل کے بارے میں ملک بھر میں وسیع پیمانے پر بات چیت اور مشاورت کی گئی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بل کا مسودہ سچر کمیٹی کی رپورٹ کی بنیاد پر تیار کیا گیا تھا۔ اس بل سے مذہبی اداروں میں کوئی مداخلت نہیں ہوگی۔ اور وقف امینڈمنٹ بل کو ہمارا طرف سے ہم پرستت کرتے ہیں کہ جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنا کر میں سبھی مانیہ سدسیوں سبھی دلوں سے نیتاؤں سے بات کر کر اس جوائنٹ پارلیمنٹ کمیٹی کو بناؤں گا۔ ٹھیک ہے۔ کل ہند مجلس اتحاد المسلمین سمیت کانگریس، TMC، NCP، شرد پوار، سماجوادی پارٹی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں نے مجوزہ ترمیم کی مخالفت کی ہے۔ اپوزیشن کے شدید احتجاج کے بعد مودی حکومت نے وقف ترمیمی بل کو پارلیمنٹ کی اسٹینڈنگ کمیٹی کو روانہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ لوک سبھا میں اس متنازع بل کو پیش کرنے کے بعد وزیر اقلیتی امور کرن رجیجو نے 1 گھنٹے تک اس بل کے مختلف نکات کو پیش کرتے ہوئے اسے مسلم کمیونٹی کے حق میں درست قرار دیا اور اپوزیشن پر مسلمانوں کو گمراہ کرنے کا الزام عائد کیا۔ مرکزی وزیر کی تقریر کے دوران مجلس کے رکن پارلیمنٹ بیرسٹر اسدالدین اویسی اور اپوزیشن انڈیا اتحاد کے ارکان کافی احتجاج کر رہے تھے۔ اپنی تقریر ختم کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے اس بل کو جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی کو بھیجنے کی تجویز پیش کی تاکہ اس بل کی تفصیلی جانچ کی جا سکے۔ مرکزی وزیر کی اس تجویز پر لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ اس معاملے میں کمیٹی بنانے کا عمل جلد انجام دیں گے۔ صرف 1 سال کے اندر میں آن لائن کمپلین 194 complaints related to encroachment and illegal transfer of work land. 1 سال کے اندر میں اور 93 complaints against وقف بورڈ officials
N279 एक जनरल कंप्लेन ये ऑनलाइन हमारे पास में पोर्टल में आया है। उसके बाद सर आज सर ये एक समुदाय का बात मुसलमानों को गुमराह करके यहाँ बात रखा जा रहा है। कल देर रात तक मेरे पास में मुसलमानों का डेलीगेशन आते रहा और हमसे पहले भी कितने लोग मिले हैं, और इसको आप ये सोचते हैं कि क्या सर ये क्या बोहराज कम्युनिटी का संख्या कम है, इसके लिए ये महत्व नहीं देंगे क्या? सर अहमदिया ये कम संख्या है, इसलिए क्या उनका सोच उनका प्रॉब्लम्स का नजरअंदाज करेंगे? सर आगा खानी संख्या कम है, क्या उसके बात को नहीं सुना जाना चाहिए? सर एक कम्युनिटी डोमिनेशन करके अगर छोटे छोटे लोगों को कुचल देंगे तो फिर हम इस सदन में बैठ करके हम न्याय कैसे दे सकते हैं? इसलिए ये एक तरफा आवाज उठा करके पूरा मुसलमान के नाम से ये लोग एक तरफा ये कुछ चंद लोगों का आवाज यहाँ आज बुलंद कर रहे हैं इस सदन में। सर जो वक्फ बोर्ड के बारे में कई लोगों ने जिक्र किया है, लेकिन प्राइवेटली इसमें भी कई ऐसा नेता है जो मुझे आके कहा है कि देश में जितना स्टेट वक्फ बोर्ड है सब माफिया लोगों ने कब्जा कर लिया है। ये बहुत लोग कह रहे हैं, आज सदन में नहीं कह रहे हैं, सदन में अपना अपना पार्टी का दबाव या किसी के डर से या वोट बैंक का चक्कर से नहीं बोल रहा है, मगर प्राइवेटली हर एक मुसलमान आकर के कहता है नाम मत बताना नाम तो हम बताएंगे नहीं सर। मैं आप लोगों का पॉलिटिकल इशियर में खराब नहीं कर दूंगा। कौन सा एमपी ने मुझे आके बताया कि पार्टी विरोध कर रहा है लेकिन अंदर से हम साथ दे रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा। मैं नाम लेकर के इन एमपी साथियों का पॉलिटिकल करियर को मैं बर्बाद नहीं करूंगा सर। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद ने लोकसभा में पेश किए गए मुतनाज़ा वक्फ एक्ट तरमीमी बिल की शदीद मुखालिफत की है। पार्लियामेंट में इस बात पर इशारा ख्याल करते हुए सदर मजलिस ने कहा कि इस बिल के जरिए मरकज की बीजेपी हुकूमत ने ये वाजे कर दिया है कि वो मुसलमानों की दुश्मन है और इस बिल के जरिए हुकूमत मुल्क को बांटने का काम कर रही है, जोड़ने का काम नहीं। Thank you, sir. Sir, I have given a notice under Rule 72 to oppose the Waqf Amendment Bill. Sir, I oppose the introduction of the bill under Rule 72(2) on the grounds that this House does not have the competence to make these amendments. This bill patently violates the principles provided in Article 14, 15 and 25. Sir, it is both discriminatory, arbitrary. It is a grave attack on the basic structure of the Constitution as it violates the principle of judicial independence, separation of powers. Sir, one thing has to be understood, that the Waqf management of a property is an essential religious practice for a Muslim. By denying legal recognition to Waqf al-Awlad under Clause 4 and Waqf by user under Section 3(r)(1), government has sought to severely restrict how Muslims can manage their Waqf property. Sir, in fact, Hindu endowment boards, I challenge, Hindu endowment boards are recognized even by usage and custom. Here you are asking for documentation. No existing law, whether non-religious or personal, limits the right of a person to will their property or dispose it. But what you are doing over here, a Hindu can give through will his complete property to his daughter or son. I as a Muslim cannot do, I can only give 1/3. But what you are doing, I can gift, but I cannot give it in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. Now you are stopping me from praying. Now what you are doing, you are restraining Waqf al-Awlad. That is not only discriminatory and violating Article 25, sir. There is no limit on anyone to will their proper dispose of. Sir, to insist that a person has practiced Islam for 5 years. Sir, 1-2 minute diye, sabko diya aap. अगर कल कोई आके बोलेगा कि नहीं मैं 5 साल से इस्लाम प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूं, कौन डिसाइड करेगा सर? और एक न्यू कन्वर्ट है, does he has to wait for 5 years to give his property to Waqf? Isn't that violation of right to freedom of religion?
Sir, another point, sir. Now, no such provision exists for Hindu Endowment or Sikh Gurdwara Prabandhak Committee. Now, irony of the amendment, sir, is that non-Muslims can become member of CWC, SWB, but he cannot dedicate waqf. Arbitrage. Why is arbitrage? Sir, existing law protected the status of registered waqf properties. You have replaced that by empowering collector to determine title. You are violating principal rights of justice that one may not be a judge in their own cause. Section 61. If DM says to Matawalli, make this masjid as a government property, if does not listen, punishable offence. This is against separation of powers, part of which is basic structure. This bill excludes tribunal decisions from being final. If collector has been replaced by tribunal, and who's going to sit in the tribunal? A retired government judge and a retired government employee. How can the nominee be a part of this composition, sir? In our Okay. आप डिटेल में बोल देना ऑफिसर. सर मैं खत्म कर रहा हूँ. Secondary level officers can be appointed technical members. 83 states that joint secretary added tribunal. Waqf properties, sir, are not public properties. By removing waqf by user, this government wants to take over dargah, masjid and waqf properties. Sir, take this example of 107. You have made it more difficult to be removed. Encroachment happens. Section 37 removes protection to waqf properties. Section 40 prejudicial amendments. And the government is, sir, government बोल रही है. सर मैं खत्म कर रहा हूँ सर, आधा मिनट. गवर्नमेंट कह रहे हैं कि हम महिलाओं को दे रहे हैं. मुझे यकीन है कि आप बिल्किस बानो को और ज़किया जाफरी को मेंबर बनाएंगे. मुझे यकीन है. मैं आपसे जानना चाह रहा हूं सर कि ये जो आप बिल ला रहे हैं, आप देश को बांटने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं. आप दुश्मन हैं मुसलमानों के, उसका सबूत ये बिल है. थैंक यू सर. हिंदुस्तानी सरहदों की हिफाजत करने वाली बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के हुक्काम का कहना है कि बांग्लादेश में मौजूदा सियासी बहरान के सबब सैकड़ों बांग्लादेशी हिंदू भारत में दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं. वो बांग्लादेश के साथ भारत की सरहद पर मुख्तलिफ मकामात पर जमा हो गए हैं. तुलबा की क़यादत में पुरतशद्दुद एहतजाजी तहरीक के नतीजे में वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना को अपने ओहदे से पीर के रोज़ इस्तीफ़ा देना पड़ा था. तख्ता उलट जाने के बाद वो बांग्लादेश से फरार होकर भारत पहुंच गईं और फिलहाल दारुल हुकूमत दिल्ली से करीब हिंडन एयरबेस पर सख्त सिक्योरिटी में मुकीम है. नई दिल्ली हुकूमत का कहना है कि किसी यूरोपीय मुल्क में बाज़ाब्ता सियासी पनाह मिलने तक वो भारत में रह सकती हैं. खबर रसां एजेंसी AFP के मुताबिक हसीना की बेदखली के बाद हिंदुओं की मिल्कियत वाले कुछ कारोबारों और घरों पर हमले किए गए. बाज़ लोगों का ख्याल है कि हमलों का निशाना बनाए जाने वाले शेख हसीना के हामी हैं. बांग्लादेश के सियासी हालात और भारत को दरपेश चैलेंजेस बांग्लादेश के असल मसाइल अब शुरू हुए हैं. BSF के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल अमित कुमार त्यागी ने AFP को बताया कि सैकड़ों बांग्लादेशी शहरी, जिनमें ज्यादातर हिंदू हैं, बांग्लादेश के साथ भारत की सरहद पर मुख्तलिफ मकामात पर जमा हो गए. 200 से ज्यादा लोग रियासत मगरबी बंगाल में भारत बांग्लादेश सरहद के करीब खड़े हैं. बच्चे हमारे पकड़ा के 5 दिन से जीना हराम कर दिया सर. के लिए दंगल हिंदू लोग एक भी रात में नहीं सोए. ना सर मगरबी बंगाल के साबिक चीफ मिनिस्टर बुद्धादीप भट्टाचार्य का 80 साल की उम्र में जुमेरात को देहांत हो गया. वो मगरबी बंगाल में बायमास की 34 साल हुक्मरानी के दूसरे और आखिरी चीफ मिनिस्टर के तौर पर खिदमत अंजाम देने के लिए जाने जाते हैं. साल 2000 से साल 2011 तक मुसलसिल 11 साल तक वो चीफ मिनिस्टर के ओहदे पर फाइज रहे. इनकी मौत की इत्तला इनके बेटे सचितन भट्टाचार्य ने दी. उन्होंने बताया कि उनके वालिद ने सुबह नाश्ता भी किया. इसके फौरन बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई और उनका देहांत हो गया. ज़राए के मुताबिक चारशंबे की रात बुद्धादेव को सांस लेने में ज्यादा मसला पैदा हो गया था, लेकिन जुमेरात की सुबह वो दोबारा बीमार हो गए. तेलंगाना में 5 सीनियर IPS ओहदेदारों को डायरेक्टर जनरल के तौर पर तरक्की दी गई है. हुकूमत ने 5 ओहदेदारों को तरक्की देने के अहकाम जारी किए जो एडिशनल DG थे. इनमें हैदराबाद के कमिश्नर पुलिस श्रीनिवास रेड्डी,
इंटेलिजेंस चीफ शिवधर रेड्डी, अभिलाष बिसित, सौम्या मिश्रा और शिखा गोयल को डीजी के तौर पर तरक्की दी गई है। चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने इस सिलसिले में जीओ जारी कर दिया। तेलंगाना स्टेट पुलिस एकेडमी के डायरेक्टर अभिलाष बिसित, जेल के डीजी सौम्या मिश्रा और सीआईडी चीफ की हैसियत से शिखा गोयल खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अहकामात में कहा गया है कि तमाम इन्हीं ओहदों पर बरकरार रहेंगे। फाइनेंशियल सर्विसेज में दुनिया भर में शोहरत रखने वाली चार्ली श्वाब कंपनी ने हैदराबाद में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर कायम करने का ऐलान किया है। हिंदुस्तान में कंपनी का पहला मरकज होगा। सरमायाकारी को रागिब करने के लिए अमेरिका के दौरे में मसरूफ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और वजीर आईटी इंडस्ट्रीज श्रीधर बाबू ने डलास में कंपनी के नुमाइंदों से मुलाकात की। इस मौके पर टेक्नोलॉजी एंड डेवलपमेंट सेंटर के क़याम के लिए अहम फैसले किए गए। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने यकीन दिलाया कि हैदराबाद में इस मरकज के क़याम के लिए रियासती हुकूमत ताउन फराहम करेगी। उन्होंने कहा कि कंपनी की सरगर्मियों को तेज करने के लिए दरकार रहनुमाई की जाएगी। कंपनी के नुमाइंदों ने रियासती हुकूमत के ताउन के ऐलान पर इजहार तशक्कुर किया। चार्ली श्वाब इस टेक्नोलॉजी सेंटर के क़याम के लिए हतमी मंजूरी का इंतजार कर रही है। जल्द ही वो अपनी टीम को हैदराबाद भेजेगी। इस कंपनी की तौसीक के साथ ही हैदराबाद फाइनेंशियल सर्विसेज के शोबे में भी दुनिया की तवज्जो का मरकज बन जाएगा। शदीद बारिश की वजह से तेलंगाना के नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की सतह में इजाफा देखा जा रहा है, जिसके बाद इस प्रोजेक्ट के 26 दरवाजे खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। 22 दरवाजे 5 फीट और 4 गेट 10 फीट खोलकर पानी बहाया जा रहा है। नागार्जुना सागर की मुकम्मल सतह 590 फीट के बरखिलाफ 585.30 फीट दर्ज की गई है। इसीलिए पानी नशीबी इलाकों में छोड़ा जा रहा है। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में एक नाबालिग लड़के ने कार चलाते हुए 3 मोटरसाइकिलों को टक्कर दे दी। तेज रफ्तार कार की टक्कर से 3 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचा। ये वाकया विकाराबाद जिले के तांडू टाउन में पेश आया। तफसीलात के मुताबिक चाहशंबी की रात देर गए एक नाबालिग लड़का एक कार चला रहा था, जिसने मकानात के बाहर पार्क की हुई मोटरसाइकिलों को टक्कर दे दी। इस दौरान वहां से एक लड़का साइकिल पर जा रहा था, ताहम वो इस हादसे में करिश्माती तौर पर बच गया। हादसे का मंजर करीब में नस्ब सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिस पर मुकामी अफराद ने नाबालिग के कार चलाने पर शदीद एतराज किया है। ईरान ने कहा है कि इसराइल ने हमारे मेहमान को कत्ल किया है, हम इसका जवाब जरूर देंगे। ईरानी सदर ने अपने फ्रांसीसी हममनसब इमानुएल मैक्रोन के साथ टेलीफोन पर बातचीत में कहा कि उनका मुल्क अपने मफादात और सलामती पर हमलों के बारे में खामोश नहीं रहेगा और बैनुल अक़वामी क़वानीन और माहिदों के मुताबिक कार्रवाई करेगा। ईरान की सरकारी खबररसां एजेंसी के मुताबिक ईरान के सदर ने मैक्रोन से कहा कि तेहरान इजराइल को मुनासिब जवाब देने का अपना हक महफूज रखता है। उसने हमारे मेहमान को हमारी सरजमीन पर कत्ल किया है और ये मामूली बात नहीं है। इस मौके पर सदर मैक्रोन ने अपने ईरानी हममनसब से कशीदगी से बचने और इंतकाम न लेने पर जोर दिया। गजा में इस्राएली फौज की जानिब से सेफ जोन एरिया में कीमों पर हमला किया गया, जिसमें 18 फलस्तीनी जिंदा जलकर शहीद हो गए। इजरायली फौज ने कानूनी शहर में कीमों पर हमला कर दिया, जिसमें 18 फलस्तीनियों की मौत हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली फौज ने खान यूनुस में सेफ जोन करार दिए गए इलाके पर बमबारी की, जिसके नतीजे में कीमों में मुकीम 18 फलस्तीनी शहीद हो गए, जबकि अक्सर हलाकतें बमबारी के बाद कीमों में आग लगने और जिंदा जल जाने के बाइस हुई। रिपोर्ट में बताया गया है कि इजरायली तैयारों ने जबालिया पनाहगजी कैंप पर भी बमबारी की, जिसके नतीजे में मुतादिद हलाकतों की इत्तला है। मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी एक्ट बिल पार्लियामेंट में पेश, अपोजिशन का शदीद एहतजाज व एतराज। बीजेपी मुसलमानों की दुश्मन, मुतनाज़ा बिल पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का शदीद रद्द-ए-अमल। फाइनेंशियल सर्विसेज में दुनिया भर में मशहूर कंपनी का मरकज हैदराबाद में होगा कायम। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी की अमेरिका में कंपनी के नुमाइंदों से बातचीत।
اور تلنگانہ میں 5 IPS عہدیداروں کو ڈائریکٹر جنرل کے طور پر ترقی، کمشنر پولیس حیدرآباد سرینواس ریڈی بھی شامل۔ یہ تھی اعتماد کی خبریں۔ آج کا خبرنامہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ دوبارہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت۔